شیربین کے سامعین کو محمد حسین ظفر کا سلام پہنچے۔ آج کے خاص موضوعات ہیں: نئے سال کی آمد پر سری نگر، گلمرگ اور پہلگام میں جشن۔ لیفٹیننٹ گورنر، وزیر اعلیٰ اور میر وائس کشمیر نے جموں کشمیر کے لوگوں کو دی مبارکباد۔ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے جموں کشمیر کی سیاسی جماعتیں آنے والے وقت میں مشاورت اور گفت و شنید کریں گی۔ 3 پاور سینٹروں سے جموں کشمیر کی ترقی ممکن نہیں، محمد یوسف تاریگامی۔ وادی میں ٹھنڈ جاری، 4 جنوری سے پھر برفباری کی پیشگوئی اور وادی کے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید قلت۔ ترال کے مندورہ میں ناصاف پانی پینے سے یرکان کی بیماری پھوٹ پڑی ہے، کئی لوگ بیمار۔ اور بھی چند موضوعات رہیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا، 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 اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا۔ خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو اب کے سردیوں میں مکان، دکان، ڈیم سب سیٹ رہیں گے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ اپنے بڑھاپے کا خیال آج سے ہی رکھیں۔ اٹل پینشن یوجنا آپ کی پینشن کی سرکشا۔ صرف 42 روپے مہینے سے شروع کر کے پائیں میچورٹی پہ ہر مہینے 1000 سے 5000 تک کی پینشن۔ آرگنائزڈ اور ان آرگنائزڈ دونوں سیکٹرز کے لیے یہ اسکیم سنہرا موقع ہے۔ ابھی جڑیں اور اپنے کل کو سرکشت رکھیں۔ CSR انیشیٹو آف J&K بینک، آپ کا اپنا بینک۔ بوزیو ڈاکٹر نصیر یونانی اینڈ پنچکرما طرف اخ ضروری اعلان۔ جنوری کس ریتس فری کنسلٹیشن، کمر دود، کوٹھ دود، ریہار، گردن ہز داغ تو باقی دگہ دادین خاطر دگہ دوا بغٲری علاج، یتھ منز ریجیمنٹل تھراپی ست علاج یوان کرنہ۔ بچٲیِو پنن میاد، پنن جگر تو پنن پان سائڈ افیکٹو نش۔ سون مقصد چھُ دگہ دوا بغٲری دگ ژٔلراوٕنۍ۔ رٲبطہٕ کٔرِو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹرز، لال چوک اننت ناگ، کوٹ روڈ شپیاں، خانقاہ فیض پناہ ترال، سکڈافر چوک عیدگاہ سری نگر، اردو بازار بارہمولہ، ماگام اپوزٹ بوائز ہائر سیکنڈری تو ڈاکٹر نصیر یونانی و پنچکرما سینٹر، اقبال کالونی، بڑشاہ نگر، نٹی پورہ، سری نگر۔ سیل نمبر 9419408011۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ شیربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.81 میٹر FM 2 103.5 میگا ہرٹز کے علاوہ آکاشوانی کپواڑ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پر ایک ساتھ سن رہے ہیں۔ سامعین، آج سال نو یعنی سال 2025 کی پہلی تاریخ ہے۔ گلمرگ، سری نگر، پہلگام اور دیگر سیاحتی مقامات پر گزشتہ شب سیاحوں نے نئے سال کی آمد پر جشن منایا اور رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام رہا اور ان تقریبات میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اسی دوران جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے نئے سال کی آمد پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے اور ساتھ ہی دعا کی ہے کہ سال نو عام لوگوں کے لیے خوشی، خوشحالی اور تندرستی کی نوید لے آئے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے ان خیالات کا اظہار آج سماجی رابطہ پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ اس دوران جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی نئے سال کی آمد پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس دوران میر وائس کشمیر مولوی عمر فاروق نے بھی سال نو کی آمد پر پوری دنیا میں امن و سکون اور خوشحالی قائم ہونے کی دعا کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں میں انصاف، وقار اور خوشیوں کی بہار آئے۔ میر وائس فاروق نے بھی ان خیالات کا اظہار ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ سامعین، جموں میں آج جموں کشمیر اسمبلی بزنس رولز کمیٹی کی پہلی میٹنگ منعقد ہوئی۔ البتہ چند ممبران آج کی میٹنگ میں شامل نہیں ہو پائے، جس وجہ سے میٹنگ کو منسوخ کرنا پڑا۔ آج کی میٹنگ جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتر کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں قانون سازیہ کے لیے بزنس رولز مرتب کرنے کا عمل شروع کرنا تھا۔ اس دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کل پہلی بار سری نگر میں میڈیا کے ساتھ ایک ملاقات کا پروگرام رکھا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل صبح 11 بجے وزیر
اعلیٰ عمر عبداللہ SKICC سری نگر میں وادی کے صحافیوں اور میڈیا افراد سے ملاقات کریں گے۔ وزیر کے عمر عبداللہ چند ہفتے پہلے نئی دلی میں وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی مل کر آئے ہیں اور انہوں نے ریاست کا درجہ فوری طور بحال کرنے کا مطالبہ دہرایا ہے۔ البتہ مرکزی سرکار کی جانب سے فی الحال ریاست کے درجے کی بحالی پر مکمل طور خاموشی اختیار کی گئی ہے اور مرکز کی جانب سے اس معاملے پر کوئی چرچا نہیں ہو رہی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی سیاسی جماعتوں نے فی الحال خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ حالانکہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پہلی کابینہ میٹنگ میں ریاست کا درجہ بحال کرنے کے لیے قرارداد پاس کی اور بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے سپرد کی۔ ادھر کانگریس CPIM PDP اور دیگر جماعتوں نے بھی ریاست کے درجے کی بحالی پر چپی سادھ لی ہے۔ 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان جماعتوں نے ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے کوئی مستقل لاہ عمل مرتب نہیں کیا ہے اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے اس معاملے کو لے کر مشاورت شروع کی ہے۔ اس دوران CPIM کے سینئر لیڈر اور MLA کلگام محمد یوسف تاریگامی نے بھی آج شام شہرین کو بتایا کہ ریاست کی بحالی کے لیے ہم آنے والے وقت میں مشاورت کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مستقبل کا لاہ عمل طے کیا جائے گا تاکہ ہم ایک آواز ہو کر ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے اپنی آواز پھر سے بلند کریں۔ جہاں تک ریاستی درجے کو بحال کرنے کا سوال ہے، یہ ہماری مشترکہ مانگ رہی ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا اگر کسی ایشو پر آج کی تاریخ میں کنسنسس ہے جموں کشمیر میں، وہ کنسنسس اس بات پر ہے کہ ریاست کو مکمل ریاست کی بحالی از حد ضروری ہے اور وعدہ بند ہے سرکار ہند اور اس کے زعما، ان کو آپ نے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے کی طرف ٹھوس قدم اٹھانے چاہیے۔ میں جہاں تک جو منڈیٹ ملا ہے ہمارا، جو ابھی چناؤ ہوئے، یہ صرف کشمیر کے ساتھ ناانصافی نہیں، جموں کے ساتھ ناانصافی ہے، لیکن جہاں تک جموں کشمیر کے اس اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے، ہمارے کئی معاملات ہیں جو میری ذاتی رائے ہے، اب بھی میں اس بات پر قائم ہوں ایک شہری ہونے کے ناطے، اور جس پارٹی کے ساتھ میرا تعلق ہے پوری پارٹی اس کے ساتھ گامزن ہے کہ ہمارا اسپیشل سٹیٹس وہ کہیں اور سے نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشن جو آرڈر ہے ملک کا، جس کی بنیاد کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہند نے ڈالی ہے، اس کو کمزور کیا گیا، اس کے مطابق ایسا ہوا نہیں، اس کے خلاف ہوا، اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور ہمارے ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارے حقوق کے ساتھ انصاف نہیں بلکہ کھلواڑ ہے۔ بہرحال لیکن اسٹیٹ ہوڈ کی مانگ یہ ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، خود سپریم کورٹ میں جو ہم نے پیٹیشن دائر کیے تھے ری آرگنائزیشن ایکٹ کے خلاف بھی، اور اس میں جو ججمنٹ آیا، ورڈکٹ آیا، اس میں یہ درج ہے کہ سالیسیٹر جنرل نے بتایا کورٹ کو کہ جہاں تک اسٹیٹ ہوڈ کا تعلق ہے یہ ٹیمپرری ہے اور اس کی بحالی کی ضمانت کمٹمنٹ ہے ہند سرکار کی، اور یہ درج ہے سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ میں جس کا چرچا بار بار ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آل پارٹیز میٹنگ، پہلی آل پارٹیز میٹنگ پرائم منسٹر آف انڈیا نے بلائی، وہاں ہوم منسٹر صاحب نے اس بڑی میٹنگ میں، بڑے اجلاس میں یہ کہا کیا یہ کرونالوجیکل آرڈر میں ہوگا، ڈیلیمیٹیشن ہوگا، الیکشن ہوں گے اور ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہوگا۔ ڈیلیمیٹیشن ہوا، میرا اعتراض رہا ہے اس پر ہمارا، اور اس کے علاوہ تب بھی ہوا اور چناؤ بھی ہوئے، اور چناؤ کے بعد اسٹیٹ ہوڈ کے بارے میں ابھی کوئی چرچا نہیں ہے سرکار ہند کی طرف سے۔ اور جہاں تک یہ ہماری کیبنٹ کا تعلق ہے جس کی رہنمائی عمر صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے پہلی میٹنگ میں ہی ریزولوشن اڈاپٹ کیا، اور وہ ریزولوشن گورنر صاحب کو گیا، لیفٹنٹ گورنر صاحب کو، اور اس کے بعد پرائم منسٹر کے حوالے کیا گیا اور ان کے رخ کا جو کیبنٹ میں۔ بتائیے اب بال کہاں ہیں؟ وہ کورٹ میں، جموں کشمیر کے کورٹ میں نہیں ہے بلکہ ہند سرکار کے کورٹ میں ہے۔ ہمارے عوام کو یہ سمجھنا ہوگا۔ ریاست کے درجے کی بحالی کے لیے آنے والے دنوں میں جموں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کے درمیان مشاورت ہوگی، بات کر رہے تھے CPIM کے سینئر لیڈر اور MLA کلگام محمد یوسف تاریگامی۔ سمن وادی کشمیر میں ٹھنڈ کی لہر جاری ہے۔ گزشتہ شب سری نگر میں منفی درجہ حرارت ریکارڈ ہوا اور کئی علاقوں میں اس میں
गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में इजाफा महसूस किया गया। नए साल के पहले दिन श्रीनगर में शबाना दर्जा हरारत -4.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि महकमा मौसमियात ने पहले हफ्ते के दौरान बर्फबारी की पेशगोई की है। इस दौरान बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का जोर बरकरार है और इस वजह से वादी में रह रहे लोग सख्त मुश्किलात से दुचार हैं। गुलमर्ग में कम से कम दर्जा हरारत -8.8 डिग्री, पहलगाम में -7.6, सोनमर्ग में -7.2 डिग्री, श्रीनगर में 4.4 मनफी रिकॉर्ड हुआ है और यहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत -3.5 डिग्री था। इस दौरान श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने आशम शहरवीन को बताया कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक वादी में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मुतवक्के, जबकि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। अलबत्ता आज रात के दौरान भी मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। फोकास से खासकर 2 WD जो है फिर से अफेक्ट कर रहा है जम्मू कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज को, और जो फर्स्ट WD है खासकर आज रात से लेकर कल खासकर दोपहर तक जो इसका एक्टिविटी रहेगा और हल्की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के, और कुछ एक पहाड़ी इलाके साउथ कश्मीर के अंदर भी, और यहाँ सेंट्रल और नॉर्थ कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर कुछ एक जगहों पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी जो नेक्स्ट WD है वो खासकर 4 से जो है अप्रोच कर रहा है, तो लगभग 6 दोपहर तक इससे एक्टिविटी रहने के चांस है और इस भी वाइड स्प्रेड बर्फबारी के चांसेस हैं। लगभग 4-5 इंच से लेके 7-8 इंच तक की भी बर्फबारी मैदानी इलाकों में देखी जा सकती है, और इसी तरह लोअर रीच और मिडल रीच के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी, और पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी या वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं, खासकर जो एक्सट्रीम जो हायर रीच हैं। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है बारिशें रहेंगे अमूमन, खासकर हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें जम्मू के मैदानी इलाकों के अंदर, और इसी तरह चिनाब वैली और पीर पंजाल के जो हायर रीच हैं यहाँ पे भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं लगभग 6 मॉर्निंग तक, और उसके बाद जो है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा। 6 दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आएगी और 10 जनवरी तक मौसम अमूमन ड्राई रह सकता है। जो आप कह रहे हैं कि 4 से 6 तक एक मॉडरेट स्पेल जो है वो आ रहा है, ये 27-28 दिसंबर की तरह कि उससे ज्यादा बराबर? ये लगभग उसी इंटेंसिटी का है और सेम वेदर पैटर्न रहने के चांसेस हैं अभी खासकर 4, 5, 6 के दरमियान, तो सिमिलर वेदर पैटर्न रहने के चांसेस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी भी हो सकता है, कुछ एक लोअर रीच और प्लेन्स के बीच में भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। तो कुल मिला के एक अच्छा वेट स्पेल जो है एक बार फिर देखने को मिल सकता है, खासकर 4 से लेके 6 जनवरी के बीच में। जिस तरह से 27 और 28 दिसंबर को श्रीनगर, जम्मू, शारा भी मुतासर हुई थी, तो इस बार भी उसी तरह की तवक्का है? बिल्कुल, इसमें श्रीनगर, जम्मू कौमी शहरा ही नहीं, बाकी जो शहराएं खासकर पहाड़ी इलाकों के, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, मोगल रोड की बात करें, सिंटन टॉप, मर्कन टॉप की बात करें, राजदान पास की बात करें, साधना टॉप की बात करें, सारे जो शहराएं हैं सारे मुतासर हो सकता है, इंक्लूडिंग जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। तो हर जगह जो है बर्फबारी के चांस हैं। यहाँ लद्दाख में भी जो है बर्फबारी के चांस हैं, खासकर जोजिला और यहाँ द्रास, मीनामरक, इसी तरह अफसर, सांकू, पानीखर, इन सारे जगहों पे जो है एक मॉडरेट स्पेल के चांस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हैवी स्नोफॉल के भी चांस हैं। डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह के हेडक्वार्टर्स में भी जो है लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, खासकर 4 से लेकर 6 के बीच। तो अभी हम देख रहे हैं कि शबाना दर्जा हरारत जो है -4 से ऊपर चला गया है, तो क्या इस दौरान आज से क्या ठंड की लहर में कोई कमी आएगी? ठंड अभी देखो मौसम अब अबर आलूद रहने के चांसेस हैं आज से लेकर लगभग 7 जनवरी तक। तो इस बीच जो है ठंड में काफी कमी देखने को मिल सकता है, मिनिमम टेम्परेचर में काफी इंप्रूवमेंट होगा। तो जो कोल्ड वेव था बीच में 1-2 दिनों के लिए फिर से, तो हर जगह जो है अक्रॉस द स्टेशन जो है टेम्परेचर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, खासकर मिनिमम टेम्परेचर। बाकी मैक्सिमम टेम्परेचर में थोड़ा गिरावट आएगा, लगभग 3-4 डिग्री मामूल से नीचे ही रहने के चांसेस हैं। दिन जो है अमूमन ठंड रहेगा, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग जो कोल्ड वेव या जो सर्दी की जो लहर है उसमें काफी कमी देखने को मिलती है। 4 जनवरी से 6 जनवरी तक फिर एक बार अच्छी खासी बर्फबारी की पेशगोई बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इस दौरान कई पहाड़ी इलाकों में फिसलन की वजह से ट्रांसपोर्ट मुतासर रहता है और इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टरों से कहा कि वो फिसलन के नतीजे में ऐसी सड़कों पर सफर न करें। इतलात के मुताबिक श्रीनगर, करगिल और गुरेज सड़क को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अलबत्ता फिसलन की वजह से गाड़ियों को चलने में दिक्कतों का सामना रहता है। मुगल शारा, सिंथन टॉप, मरगन टॉप और दीगर सड़कें आमतौर के लिए अभी तक बहाल नहीं हो पाई। इस दौरान एसएसपी ट्रैफिक रूलर ने तमाम ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों से कहा है कि वो पहाड़ी सड़कों पर चेन का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि वो 4x4 गाड़ियां ही इस्तेमाल करें, क्योंकि फिसलन वाली सड़कों पर इन्हीं गाड़ियों में सफर बेहतर रहता है। NH 44 जो है अभी हमारा बिल्कुल ही अभी फ्री एंड
हासिल मूवमेंट हो रही है उस पे, और बोथ साइड से अप और डाउन भी ट्रैफिक चल रहा है, जम्मू साइड से भी, श्रीनगर से भी, अच्छा भी अगर आलमीद भी चल रही है। बाकी यही है कि वो शाम को थोड़ा बहुत बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल, हैवी स्नोफॉल, स्लिपरी कंडीशन हो जाती है क्योंकि आईसी हो जाता है, तो इसलिए कोई 4 बजे शाम को और मॉर्निंग में भी लगभग कोई 7-8 बजे तक ये मूवमेंट रेस का ये रहता ही है, रेस का थोड़ा सा स्लिपरी। और इसके लिए इनफैक्ट जितने भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो भी वहाँ पे अहदेदार हैं वो अकॉर्डिंगली उनको कन्वे किया और उनको बताया भी है कि इसमें यूरिया का स्प्रे एज वेल एज सॉल्ट वगैरह वो कंटिन्यूसली वहाँ पे डाल रहे हैं, और इनफैक्ट दे आर प्रिपेयरिंग इट फॉर हासिल फ्री मूवमेंट जिससे हो सके। बाकी FSG रोड जो है वो हमारा वन वे है, और वन वे चल रहा है। एक दिन करगिल से आ रहे हैं और दूसरे दिन यहाँ से सोनामल टुवर्ड्स करगिल के लिए ट्रैफिक रखा हुआ हम लोगों ने, जिसमें LMVs है, और उसमें एंटी जो स्किड वाला जो एक चेंज रहती है वो हम लोगों ने पहले ही एडवाइजरी में लिखा है कि दे हैव टू वेयर दोज एंटी स्किड चेंज सो दैट, क्योंकि स्लिपरी है वहाँ पे काफी। और अभी जो हमारा गुरेज वाला जो है वो भी इस वक्त एंटी स्किड और चेंज और 4x4 व्हीकल्स LMV ही अलाउड है वहाँ पे। और इनफैक्ट जो राजदान है, राजदान का भी यही है, और जो टंगा का जो रोड है तो उसके लिए भी हमारे एडवाइजरी यही रहेगी कि ये जो तो एंटी स्किड जो है वहाँ पे चेंज, और जो हैवी व्हीकल्स वो ना जाएं तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में कुछ एक जो हमारे फ्यूचर जो फोरकास्ट है, कुछ प्रेडिक्शंस हैं और इंक्लेमेंट वेदर भी रहेगा, सो पीपल हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। और काफी जो हमारे फार फ्लंग एरियाज है, जैसे सिम्पसन है, हमारा बोगल रोड है, उसके लिए भी सेम एडवाइजरी रहेगी, क्योंकि दे हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑल ऑफ सडन वहाँ पे एकोमोडेशन जो है बर्फ काफी जमा हो जाती है और स्नो डेप्थ भी काफी ज्यादा हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, और जो भी वाहन चालक जितने भी हमारे रहते हैं यहाँ पे, जो भी ड्राइवर हजरात रहते हैं, एंड दे हैव टू फॉलो द एडवाइजरीज आल्सो, एंड दे हैव टू फॉलो द जो हमारी एडवाइजरीज हेडक्वार्टर से निकलती है जो रात को, उसके तहीं वो लोग चलेंगे और अकॉर्डिंगली प्लान भी करेंगे। जो भी पैसेंजर्स हमारे हैं जो भी अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर जाना चाहते हैं, दे हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड दे हैव टू गो थ्रू द एडवाइजरीज फ्रॉम जो हेडक्वार्टर से हमारी ट्रैफिक हेडक्वार्टर से निकलती है। और अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काफी हमारे जो जितने भी फोन हम लोगों ने शेयर कर रखे हैं एडवाइजरी के थ्रू, they can contact us and accordingly they can get the situation about the road conditions. करगिल, गुरेज और दीगर पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले ड्राइवर एहतियात से काम लें, बात कर रहे थे SSP ट्रैफिक रूरल रविंद्र पाल सिंह। इधर वादी कश्मीर को जम्मू सूबे के राजौरी और पुंछ अजला के साथ रास्त जोड़ने वाली मुगल रोड पर ट्रैफिक की नकुल हमल बंद है। इधर महकमा तामीरात आमा पुंछ ने सड़क के रखरखाव और इससे बेशतराकात खुला रखने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए मुगल रोड को बफलिया से पीर की गली तक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया है। इस दौरान ट्रैफिक हुकाम ने खराब मौसम और मौसम सरमा को नजर में रखते हुए मुसाफिरों से लेन डिसिप्लिन पर अमल करने की ताकीद की और कहा कि वो मिट्टी के तूदे या चट्टाने खिसकाने के खदशात को नजर में रखते हुए बानियाल और रामबन के दरमियान गैर जरूरी तौर पर ठहरने से इज्तनाब करें और शाहराह पर दिन के दौरान ही सफर करें। सबीना श्रीनगर में कॉम्टेक ग्रुप की तरफ से सालाना कैलेंडर और डायरीज का इजरा हुआ। इस मौके पर MLA उडी डॉक्टर सजाद शफी मेहमान खुसूसी के तौर मौजूद रहे, जबकि कॉम्टेक ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर शेख इम्तियाज और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। शेरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन में आपको फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से लेक्चररों की तकर्रुर के मकसद से उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इस मकसद से उम्मीदवारों की तरफ से ऑनलाइन दरखास्तें और फीस जमा कराने का सिलसिला जारी है। इम्तिहान के लिए दरखास्तें जमा करने वाले बाज उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने इम्तिहानी फीस QR कोड के जरिए जमा की है,
जिसकी उनके पास रसीद भी है, लेकिन ऑनलाइन निजाम में फीस जमा करने की तौसीक नहीं हो रही है और इस वजह से वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीदवारों ने शेरवीन को बताया कि कमीशन के हुकाम से भी वो राब्ता कर चुके हैं, मगर वो उनकी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। सर, मैं मंजूर अहमद भट्ट हूँ, यहाँ रफियाबाद वतरगाम से। सर, हमने +2 के लिए सर अप्लाई किया था, तो फॉर्म सबमिट किया, उसके बाद फी भी सर हमने वहाँ पे ऑनलाइन मोड में ही ट्रांसफर कर दिया उनको। लेकिन उन लोगों ने सर वहाँ ऑप्शन रखा था कि आप अगर ऑनलाइन बैंकिंग करोगे तो आप अगर वहाँ ऑप्शन था QR कोड से भी कर सकते हो। सर, हमने फिर QR कोड से पैसे हमारे डेबिट हो गए और वहाँ सक्सेसफुल हो गया सर। उसके बाद वहाँ पे फोन नंबर रखा था, बोला था आप कोई शाहिद खान साहब है तो उसको व्हाट्सएप पे डालो, अगर फोन नहीं उठाएगा व्हाट्सएप पे डालो सर। तो हमने व्हाट्सएप पे भी डाला सर, लेकिन 5 दिन से वो स्टेटस हमें वहाँ कंफर्म फी का नहीं हो रहा है। तो हम अगर कंफर्म हो जाता तो फिर हम सर अपलोड करते डॉक्यूमेंट और हमें श्रीनगर नहीं आना पड़ता सर। तो सर यहाँ मेरे साथ एक और कैंडिडेट है सर, आप इससे भी बात कीजिए। जी सर, एक्चुअली यही सेम सिचुएशन हमारे साथ भी हो रही है सर। हम 10 दिनों से हमारा फॉर्म पेंडिंग है सर, लेकिन हमने 2-4 दिन वेट किया था। फिर मैंने सोचा कि सर्वर का कुछ प्रॉब्लम इश्यू होगा, हो जाएगा अपलोड। उसके बाद उनने सर कांटेक्ट नंबर दिया था, मैंने सेक्रेटरी साहब को मैसेज भी की थी, ईमेल किया था पर्सनली सर। तो उसने मुझे वहाँ पे वो शाहिद साहब का नंबर दे दिया कि फी इंचार्ज है यही शाहिद साहब, आप इसी से कांटेक्ट कीजिए सर। शाहिद साहब ने मेरा 2-4 दिन फोन कर अटेंड किया और उसने कहा मुझे अपना ये फी रिसिप्ट मुझे व्हाट्सएप कर दो। सर, मैंने 2-4-5 दिन से मैं कर रहा हूँ उसको, लेकिन हमारा फी स्टेटस कंफर्म नहीं हो रहा है। अब हमारा नंबर मतलब सर एक्चुअली पता नहीं क्या ब्लॉक किया है, क्या किया नहीं लग रहा है नंबर, ना वो कंफर्म कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे सर उनने फी ऑप्शन के लिए दे दिया है नेट बैंकिंग, UPI थ्रो या QR कोड। उनने खुद यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन आ रहा है। हमने सोचा QR थ्रो करेंगे, QR कोड थ्रो फी हमने अप्लाई किया, वो फी पे किया सर, वो सक्सेसफुल हो गया। हमारे पास रिसिप्ट भी है सर उसके लिए, JK बिल डेस्क पे हो गया वो सक्सेसफुल। लेकिन हमारा फी स्टेटस यहाँ पे सर वो कंफर्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन सर हम 10 दिनों से कांटेक्ट कर रहे हैं, 5-6 दिनों से व्हाट्सएप पे डिटेल सब भेज रहे हैं, वो ना तो सीन कर रहे हैं सर, ना तो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं सर। हम बहुत परेशान है सर एक्चुअली। कितनी फीस थी? 1200 है सर। कैटेगरी के 1200 है सर पर सब्जेक्ट। 1200 एक सब्जेक्ट के लिए अगर अप्लाई करोगे तो 1200। तो अब हम परेशान है सर। अगर हमें फिर तो श्रीनगर आना है, उन लोगों ने बोला है फिर श्रीनगर सॉलिना श्रीनगर आना है, तो फिजिकली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सर विंटर में। उम्मीदवारों का PSC हुकाम से मुतालबा फीस जमा करने के निजाम में नुक्स को दूर किया जाए। अब एक और मौजूद, जाफरान कॉलोनी, रहीमबाग और महजूर नगर में साल 2022-23 में एक ड्रेन की तामीर का काम हाथ में लिया गया और इस ड्रेन के ब्लॉक होने की वजह से सारा फुजला और पानी सड़क पर जमा हो रहा है। इस सूरत हाल से मकामी लोग काफी परेशान हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इस मसले की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए ताकि ब्लॉक शुदा ड्रेन की सफाई और मरम्मत करके माहौल को बेहतर बनाया जाए। हजरत शेख जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज सीपोरा वायल गांधरबल में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और उसके मौके पर नमाज असर से ही खत्मात मोज़मात की मजालिस का एहतमाम रहा है। उर्स मुबारक हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह अत्तार ज़ैनकदल, हजरत शेख बहाउद्दीन गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह नवटा और हजरत बाबाजी अधमी साहब इस्लामिया कॉलेज का उर्स 2, 3, 4 और 5 रजबुल मुरज्जब मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर जमीयत हमदानिया के सदर फारूक अहमद गानी ने इंतजामिया से अपील की है कि उर्स के मौके पर वहाँ माकूल इंतजाम किए जाएं। सामीन, कश्मीरी जबान के मारूफ शायर इलियास आजाद की वालिदा का इंतकाल हुआ है। जम्मू कश्मीर की मारूफ अदबी तंजीम सागर कल्चर फोरम सुकरपटन से वाबस्ता मेम्बरान और अहदेदारों ने मरहुमा की वफात पर दुख का इजहार करते हुए सोगवारान से ताज़ियत की है। इस सिलसिले में सागर नजीर, बशीर जोगियारी, शबनम विश्वारी, गुलाम कादिर शाह, अफजल हाशमी और दीगर मेम्बरान ने गमजदा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत की है। कुपवाड़ा सिविल इत्तेहाद के मुताबिक इलाका गुजरियाल के मारूफ ताजिर और समाजी कारकुन अब्दुल गफार नून तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। मरहूम सहाफी अशरफ चराग के चचा जाद भाई थे। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासियों, समाजी तंजीमों के अलावा सिविल सोसाइटी गुजरियाल ने दुख का इजहार किया है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की। इधर आकाशवाणी श्रीनगर में पहाड़ी न्यूज रीडर फिरदौस अहमद खान के वालिद गुलाम कादिर खान, साकिना मिर्गी देवरलोलाब भी इंतकाल कर गए हैं। आकाशवाणी श्रीनगर के पहाड़ी शोबे ने फिरदौस अहमद खान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। सामिन, वादी के कई इलाकों में इन दिनों पीने के पानी की शदीद किल्लत है और इसके नतीजे में लोग गुनागो मसाइल का सामना कर रहे हैं। इधर त्राल से मिली इत्तलात के मुताबिक वहां मुंदूरा में नासा पानी पीने से यरकान की बीमारी फैली है और गांव के कई लोग मुतासिर हैं। शबीर भट्ट से एक रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल के मुंदूरा नामी गाँव में यरकान की बीमारी फूट पड़ जाने से गाँव में तशवीश की लहर दौड़ गई है और मुकामी लोगों ने इस हवाले से फौरी इकदाम का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक मुंदूरा त्राल में गुज़श्ता हफ्ते से यरकान की बीमारी के केसेस आना शुरू हो गए हैं
और रफ्ता रफ्ता ये बीमारी पूरे गांव में अब फैल रही है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों में तशवीश पाई जा रही है। मुकामी लोगों के मुताबिक जब से महकमा जल शक्ति ने इलाके में एक नई वाटर सप्लाई स्कीम से लोगों को पानी फराहम करने का सिलसिला शुरू किया है, तब से ही ये लोग, जिनमें खासकर बच्चे शामिल हैं, इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं और लोगों को अब खदशा है कि नासा पानी से ही लोग इस बीमारी में मुब्तला हो गए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक मुंदूरा नामी ये गाँव अगरचे सब जिला हेडक्वार्टर से महज 4 ही किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, ताहम इस गाँव के एक हिस्से में पीने के पानी की किल्लत का मसला साल भर दरपेश रहता था, लेकिन अब जबकि पीने के पानी का मसला खत्म हो रहा है, लेकिन लोग यरकान की बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और अब तक दर्जन भर अफराद इस बीमारी से मुतासर पाए गए हैं, जिनका इलाज मुआवजा चल रहा है। इस दौरान खबर फैलते ही त्राल में इंतजामिया अब मुतहरिक भी हो गई है और SDI त्राल से डॉक्टरों और नीम तबी अमले की एक टीम ने इलाके का दौरा किया है और लोगों को अद्वियात के अलावा जानकारी भी फराहम की है। इस दौरान तहसीलदार त्राल इमरान अहमद ने महकमा सेहत और महकमा जल शक्ति के कई अहदेदारों के हमरा मंदूरा का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि फिलवक्त हालात कंट्रोल में है और 7 अफराद रिकवर भी हुए हैं, जबकि दीगर अफराद का इलाज चल रहा है। ताहम वजूहात जानने के लिए महकमा जल शक्ति ने लोगों को फराहम करदा पानी के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, जिनके नताइज 1-2 दिन में आने की तवक्का है ताकि सूरत हाल वाजह हो सके। इस दौरान माहिरीन ने अवाम को पानी उबाल कर पीने का मशवरा दिया है। वाजह रहे कि इससे कबल त्राल के ही आरिपल इलाके में यरकान की बीमारी में दर्जनों अफराद मुतासर हो गए थे, ताहम वहां आज सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। इस दौरान महकमे बिजली की जानिब से त्राल इलाके में बिजली का एक और शेड्यूल जारी करके अवाम को मजीद परेशानी में धकेल दिया गया है। लोगों के मुताबिक बिजली की आंख मचोली से लोग आजिज आ रहे हैं, ताहम महकमा बिजली बेतहाशा फीस वसूलने के बावजूद भी सार्फिन को बेहतर बरकरार फराहम करने में अक्सर नाकाम नजर आ रहा है। ये थे त्राल से शब्बीर बाट। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि पिछले चंद दिनों से शदीद बर्फबारी की वजह से सिंथन टॉप सड़क बंद की गई है। हालांकि बर्फ को सड़क से हटा दिया गया, मगर मुख्तलिफ नालों में बर्फानी तूदे गिराने के इम्कानात की वजह से गाड़ियों की नकलो हमल को बंद रखा गया है। इस दौरान वार्डमन से आने वाले लोग गुज़श्ता 2 आयाम से हेलीकॉप्टर के जरिए किश्तवाड़ पहुंचने के मुंतजिर थे, मगर मौसम अबरालूद होने की वजह से हेलीकॉप्टर किश्तवाड़ नहीं पहुंच सका है और इस वजह से मुसाफिर आज भी दरमानदार रहे। और अब पुंछ जिले में पीने के पानी की कमी के हवाले से एक रिपोर्ट सुनते हैं केडी मैनी से। जल शक्ति योजना के तहत अगर से हर घर में पानी का नल देना मकसूद है, लेकिन जिला पुंछ के तकरीबन हर गांव में बहुत से घर ऐसे हैं जहां नल से जल नहीं मिलता और इस सर्दी और बर्फबारी के मौसम में सुबह सुबह ख्वातीन को घड़े लेकर रवायती चश्मों से पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। तकरीबन हर गांव में ऐसे मुराजात मौजूद हैं जहां अहले खाना को पानी की बुनियादी सहूलियात मैसर नहीं है। ऐसे ही गांव में तहसील मनकोट का सरहदी गांव बलनोई भी शामिल है, जहां वार्ड नंबर 6 के मोहल्ला भाटा खेतर में 40 घर, मोहल्ला नाड़ में 35 घर और मोहल्ला बाड़िया में 30 घरों में अभी तक पीने के पानी की सहूलियात दस्तयाब नहीं है। मुतासरीन ने शहरबीन को बताया कि पिछले 6 माह से वो महकमा से पानी की फरावानी के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पानी नहीं मिला।